ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی رواں سال دوسری پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر نے گورنمنٹ خدیجہ اسپتال میں 5 سال کی عمر کے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس وقت نمائندہ 5 نیوز جبران خان وہاں موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جبران، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن اور ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی رواں سال کی دوسری انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر نے حیدرآباد میں لطیف آباد میں واقع خدیجہ ہاسپٹل یونٹ نمبر 8 میں 5 سال کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کے مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر، اس سے جان لیتے ہیں سر انسداد پولیو مہم میں کیا پیغام ہے، کیا میسج؟ جی پیغام یہی ہے کہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیمپل پازیٹیو آ رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیا گیا ہے۔ آپ کا اور ہمارا فرض ہے ہم اپنے بچے کو 2 قطرے پلائیں، اور انکاری والدین جو شہر حیدرآباد کے، میں ان سے بنتی درخواست کر رہا ہوں، خدا را اپنے بچے کو پلائیے۔ اس دفعہ ہم سختی سے نپٹیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارا شہر ہے، یہ آپ کا شہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اور ٹیموں میں اضافہ کیا ہے کہ اب آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں، سوزوکیز میں کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو ٹیمیں ملیں گی، آپ اس کا فائدہ اٹھائیے۔ آپ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر کی بات سنی کہ انہوں نے انکاری والدین سے درخواست کی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ واضح ہے کہ حیدرآباد میں جاری 7 روزہ انسداد پولیو مہم میں 4,08,37 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مہم کو باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے پرامن دھرنے میں شامل ہیلتھ ملازمین پر پولیس تشدد کے خلاف نشتر اسپتال ملتان میں او پی ڈی مکمل بند کر کے ہڑتال کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رکھا۔ نشتر اسپتال ملتان میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اسٹاف، نرس اور اپکا نے دوسرے روز بھی ہسپتال کے شعبے آؤٹ ڈور میں کام روک دیا۔ دور دراز سے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کی جانب سے آج سے پولیو مہم کے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ حکومت نے مذاکرات میں سنجیدگی اختیار نہ کی تو آؤٹ ڈور میں ہڑتال جاری رہے گی۔ فیصل آباد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جال ساز مافیاز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 600 کلو جعلی کالی مرچ سمیت بڑی تعداد میں مختلف جعلی مسالے برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہاتھوں جال ساز مافیا کی شامت آ گئی۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے جال سازی کے نت نئے حربے ناکام بنا دیے۔ 600 کلو جعلی کالی مرچ، 200 کلو سفید مرچ، 500 کلو پلاسٹر آف پیرس، گڑ، میدا برآمد کر کے مشین ضبط کر لی گئی۔ جراوالا میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی سابق ممبر قومی اسمبلی ملک نواب شیر وزیر کی رہائش گاہ پر آمد۔ معززین نے علاقہ سے ملاقات کی اور عوامی مسائل بھی سنے۔ جراوالا میں گورنر سے ملاقات کے موقع پر ملک نواب شیر وزیر کا کہنا تھا کہ جراوالا کو ضلع بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ کاشتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے۔ معززین علاقہ نے گورنر پنجاب سے عوامی مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ایسا بیان دیا۔ میرپور خاص پولیس ہیڈ کوارٹر میں آنسو گیس شیلز اسٹور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ایس ایس پی میرپور خاص فوراً جائے واقعے پر پہنچے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ میرپور خاص پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں کوت کی بلڈنگ میں واقع آنسو گیس شیلز اسٹور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی میرپور خاص ڈاکٹر سمیر نور چننا فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ فائر بریگیڈ اور 1122 ریسکیو عملے نے مل کر آگ پر قابو پایا۔ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے قصور کے تاجروں نے شٹر ڈاؤن کر کے احتجاج کیا۔ انجمن موبائل ایسوسی ایشن نے عمر آرکیڈ ریلوے روڈ سے چاندنی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ بیورو چیف قصور سجاد انصاری اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی سجاد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج قصور کی تاجر برادری جو ہے وہ بھی میدان میں ہے۔ موبائل ایسوسی ایشن کی جانب سے شٹر زون جو ہے وہ ہڑتال کی گئی ہے اور ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریلی جو ہے وہ ڈرائیور ہوٹل سے شروع ہو کر ریلوے روڈ سے ہوتی ہوئی چاندنی چوک جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موبائل ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی، ہم اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم ادھر شٹر دن ہڑتال کر کے جو بھی اپنا ایک میسیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ میں شریک ہیں، لیکن جو حکمت عملی
अदारों को, आला हुकाम को करनी चाहिए। इस वक्त वो आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं। हम उनको कहेंगे कि जागो, और उधर जो प्यास से, भूख से बच्चे बिलखला के मर गए हैं, उनके लिए कोई ना कोई आप कदम उठाएं और उनके लिए आसानी पैदा करें। खुदारा आपका बहुत शुक्रिया। जी, जैसे आपने बात सुनी, उनका यही कहना है, तो आलमी बरदरी से उनका ये मुतालबा है कि फ़लस्तीन के बच्चों के बारे में सोचा जाए। वो बच्चे जो है भूख और प्यास से मर रहे हैं, उनके बारे में सोचा जाए। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ कि मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं, जिन पर जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जो है नारे दर्ज हैं, और फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो नारे भी दर्ज हैं। जी। हाफिजाबाद में गैर मयारी और मुज़र सेहत सोडा वाटर तैयार करने वाले प्लांट्स के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पिंडी भटिया में फूड सेफ्टी टीमों ने क्रैकडाउन करते हुए कार्रवाइयां की। क्रैकडाउन के दौरान 400 सोडा वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है, जबकि एक प्लांट पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। पाकपतन के गांव 16 एसपी में 19 साला लड़की को मुलजिमान ने ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिद की मुद्दत में थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकपतन में घर के बाहर से लड़की के अगवा होने का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने 19 साला लड़की को अगवा करके नामालूम मकाम पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे चिन्योट में फूड सेफ्टी टीम की जालसाज माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शहर के दूर दराज के इलाके में जालसाज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा ने बताया कि आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए आवाम की लाशऊरी से फ़ायदा उठाते हुए एक्सपायर्ड मसनूआत फ्रेश स्टॉक के साथ मिक्स करके फ़रोख्त की जा रही थी। स्टोर मालिक को 70,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 60 किलो से ज़ायद एक्सपायर्ड मसनूआत, 30 किलो गैर मयारी चीनी, 16 किलो ममनुआ चाइनीज़ सॉल्ट और 5 किलो ममनुआ रंग काट मौके पर तल्फ कर दिया गया। दूध की नाकिस क्वालिटी की वजह से 55,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि हिदायत पर अमल न करने, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और मक्खियों की भरमार की वजह से एक चिकन शॉप सील कर दी गई। सियालकोट कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से फैमिली पार्क में 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें फूलों के शौकीन अफराद ने कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत रंग बरंगे और खुशबू से महकते फूलों को देखने वालों का तांता बना रखा। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर की इस रिपोर्ट में। सियालकोट कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से फैमिली पार्क में 3 रोजा फूलों की नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें फूलों के शौकीन अफराद ने कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत रंग बिरंगे और खुशबू से महकते फूलों को देखने का तांता बंधा रहा। मैं यहाँ अपने बच्चों और फैमिली के साथ आई हूँ। यहाँ मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं। इसके अलावा बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव असर जा रहा है और सियालकोट के शहरियों के लिए इस तरह की और एक्टिविटीज फर्दर होनी चाहिए। आज हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग इधर आए हैं, फूलों की नुमाइश हो रही है, हम लोग स्कूल में भी लगे, हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है और हम लोगों ने बहुत मजे किए, इधर सेल्फीज खींची है, बहुत मजा आ रहा था। बहुत अच्छे फील कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले भी हम आए थे लेकिन पहले ये कुछ नहीं थे फूल, अब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे ही होने चाहिए इवेंट्स वगैरह, बच्चे एंजॉय करते हैं, बड़े करते हैं, अच्छे लगते हैं। अपनी बहन भाई के साथ आई हूँ, अपनी मामा साथ आई हूँ। मैं घर में फूल भी लगाना चाहती हूँ। वन क्लास में पौधों पर लगे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल न सिर्फ दिलकश नजर आते हैं बल्कि माहौल को साफ रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फैमिली के साथ आया था तो ये बड़ा खुशगवार मौसम के साथ साथ बहुत प्यारे फूल हैं, हजारों की तादाद में फूल लगाए गए हैं, तो इतने अच्छा यूनिक किया गया। नुमाइश का मकसद तेजी से खत्म होती ग्रीन बेल्ट को उजागर करना है। फूल एक अच्छी अलामत की निशानी समझी जाती है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज़ टीवी, सियालकोट। पोर्ट अब्बास से ताल्लुक़ रखने वाले उमरा ज़ायरीन का एक ग्रुप चंद रोज़ काबल सऊदी अरब रवाना हुआ था। मदीना मुनव्वरा जाते हुए ये काफिला हादसे का शिकार हो गया। एक ही ख़ानदान की 2 ख़वातीन जाँ भाग और 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब में हादसा बदर के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया, जिसमें फोर्ट अब्बास के एक ही ख़ानदान की 2 ख़वातीन जाँ भाग और 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। जाँ भाग होने वालों में आमना बीबी, रुखसाना बीबी शामिल हैं, जबकि मोहम्मद रमज़ान, फौजिया बीबी और आयशा अली ज़ख्मियों में शामिल हैं। हादसे का शिकार 5 अफराद का ताल्लुक फोर्ट अब्बास से था। मरहूम के भाई खालिद ने बातचीत करते हुए बताया कि मरहूमीन की तदफीन सऊदी अरब में ही
पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। गंदम सिर्फ फसल नहीं, ये पाकिस्तान की खुद कफालत, मईशत और आवाम के चूल्हे की ज़मानत है। मगर रवां बरस वो किसान जो सोने जैसे गंदम की लहलहाती फसल को देखकर उसके घर खुशियों का समा होता था, मगर इस दफ़ा परेशान दिखाई देता है। देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर से सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। गंदम की सुनहरी बालियां जब लहलहाती हैं तो ये मंजर किसानों के लिए खुशियों का पैगाम होता है, मगर इस बार गंदम की फसल की भरपूर तैयारी के बावजूद भी किसानों के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि तशवीश और परेशानी के आसार हैं। कसूर में गंदम की कटाई और गहाई का अमल जोरों शोर से जारी है, मगर रवां बरस किसान हुकूमती रेट मुकर्रर न होने से परेशान हैं, जिनका कहना है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, महंगी खादें, बिजली के भारी बिल और जमीनों के महंगे ठेके देते हैं, और जब फसल तैयार होती है तो इसकी मुनासिब कीमत नहीं मिलती। गंदम बीजी सी ते प्राइवेट हर खर्चे बहुत ज्यादा होए ने ते किहड़े जिमीदार दूसरे सारे उन्हां खर्चे बत्ती दे बिल और सारा कुछ दिता है ते हुकूमत रेट थोड़ा दे रही है ते साडे ते खर्चे भी नहीं पूरे उस चीज दे हो रहे हैं ते प्राइवेट खरीद रहे हैं, आड़तां वाले सारे बंदे खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, साडे खर्चे नहीं पूरे हो रहे ते जिमीदार बंदे केड़े पासे जान। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, मगर हुकूमत की अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी से ये हड्डी टूटने के करीब है। इस दफा गंदम की हुकूमती कीमत न होने से आड़ती हजरात अपनी मर्जी से गंदम सस्ते दामों खरीद रहे हैं। किसान जिन्होंने साल भर खून पसीना बहाया, अब अपने ही पैदा करदा अनाज को बेचने में मजबूर और बेबस दिखाई दे रहे हैं। खर्चे बहुत ज्यादा हैं, रेट नहीं दिस रहा, हुकूमत ख्याल करे, हुकूमत नहीं लै रही कनक, बाहर प्राइवेट लै रहे ने, वो रेट पूरा नहीं देंदे पे, ख्याल करो थोड़ा जिहा। एक तरफ हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ किसान हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। दादू में पुलिस के मददगार सेंटर 15 पर हमले का मामला। पुलिस पर हमले में मुलव्विस पुलिस एहलकार निकले। DIG हैदराबाद ने नोटिस लेते हुए SSP दादू से रिपोर्ट तलब कर ली। थाना A सेक्शन पर 3 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिएगा। दादू के 15 मददगार सेंटर पर जो है मुश्तल अफराद की जानिब से जो है हमला करने का मामला है। इसमें जो है SSP दादू की जानिब से जो है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है DSP सिटी की निगरानी में जो है तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। साथ साथ ही जो दफ़ा दहशतगर्दी के तहत मुकदमे का अंदराज किया गया था, जिसमें जो 3 पुलिस एहलकार नामजद है, पुलिस एहलकार है वज़ीर अली जमाली, मेहताब जमाली और पुलिस कांस्टेबल है जो मोहम्मद बख्श जमाली, उनके खिलाफ़ जो है SSP दादू ने जो है महकमाना कार्रवाई के लिए जो है DIG हैदराबाद को सिफारिशात कर दी है। मैं आपको बताऊं कि साथ साथ ही इस मामले का जो है DIG हैदराबाद की जानिब से भी नोटिस लिया गया है, जो SSP दादू से रिपोर्ट तलब की गई है। रात देर को ये वाक़या हुआ था कि मुश्तल अफराद की जानिब से जो है दादू के 15 मददगार सेंटर पर जो हमला किया गया था, जिसका मुकदमे का अंदराज जो है 15 इंचार्ज की जानिब से जो है 15 मुल्ज़मान समेत जो है 3 पुलिस एहलकार है उनके खिलाफ़ दर्ज किया गया था। आया ये शहरी हलकों का भी ये सवाल है कि जो 15 मददगार सेंटर है जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से जो है पुलिस के जो मुहाफ़िज़ है वो भी गैर महफूज है। इस सिलसिले में दादू के शहरी हलके यही सिंध पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ ताकि जो है बासर है उनके खिलाफ़ जो है कानून मजबूत हो सके। जी। जड़ावाला में तारड़ ज़रई मॉडल फार्म पर गंदम की कटाई की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गंदम की कटाई का आगाज़ किया। इस पर रिपोर्ट करेंगे जड़ावाला से राजा नसीम अकबर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा ने जड़ावाला में गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया। इस मौके पर किसानों और मुस्लिम लीग के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। किसानों के सदर सरफराज ताड़ा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। कोई मुझसे मेरा तारफ पूछे तो मुझे तमाम हवालों से बढ़कर इस हवाले पर फख्र है कि मैं एक किसान हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। अपनी मिट्टी से वाबस्ता हूँ और बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर अजमाने ज़राअत पंजाब अपने किसान बरादरी के हकूक़ के लिए हर वक्त
खुशहाल रहता हूँ। वफाकी वजीर कानून ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसानों को 50 अरब का पैकेज दिया है। गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों की बेहतरी के लिए कोशां हैं। किसानों को सस्ती खाद की फराहमी हमारी अवली तरजीह है। हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। किसान कार्ड एक जगह ते रहा, लेकिन सस्ती खाद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕੀ हुकूमत ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਸਤਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮੋਢਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़ जड़ावाला। वेलकम बैक। और अब यहाँ आपको बताएं कि आजकल मुल्क भर में अक्सर वाक़यात देखने को मिलते हैं कि गंदम की तैयार फसल को आग लग गई और किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस हवाले से रेस्क्यू ने क्या इंतजाम किए हैं, इस पर मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद नवीद कम्बो से, जो इस वक्त एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू अकरम के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में गंदम की फसल पककर बिल्कुल तैयार है और कटाई का अमल जारी है। आजकल अक्सर वाक़या देखने को मिल रहे हैं कि किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंकी और किसान की फसल को आग लग के लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस हवाले से रेस्क्यू 112 ने क्या इंतजाम किए हैं और हमारे साथ रेस्क्यू अकरम पनवार साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉट और ड्राई वेदर की वजह से गंदम की फसल में आग के जो वाक़यात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और रेस्क्यू 1122 जहाँ लोगों को दूसरी रेस्क्यू सर्विसेज मुहैया कर रहा है, इसी तरह फायर एमरजेंसीज में भी हम वक्त लोगों की मदद के लिए वो दस्तयाब है। लेकिन इसमें आज आपके तवज्जो से ये अहम मैसेज लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि गंदम की फसल चूँकि पक कर तैयार हो चुकी है तो वहाँ से गुजरते हुए राहगीर सिगरेट, जलती हुई सिगरेट को वहाँ पे ना फेंकें और दूसरी जो लोग वहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं वो आग जलाते हैं कोई कुकिंग या इस तरह के लिए खेतों में, तो वो भी इसे इज्तनाब करें। रेस्क्यू 1122 का किसानों के लिए ये पैगाम है कि जब भी गंदम में आग लगती है तो वो वहाँ अपने गांव से करीब तरीन ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए गंदम के खेतों के इर्द गिर्द हल चलाएं ताकि आग मज़ीद ना फैले और जो वहाँ पे दस्तयाब ट्यूबवेल हैं उनको चलाया जाए और खालों में पानी छोड़ा जाए ताकि दूसरे किसानों का नुकसान ना हो और आग को बर वक्त कर्टेल किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पनवार साहब की बात से उनका कहना था कि रेस्क्यू 112 का अमला हम वक्त तैयार है और शहरियों को भी चाहिए कि वो जलती हुई आग और सिगरेट को ना फेंकें। जी। शोरकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन में सहमाही किस्त की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहर में सेंटर ज़्यादा ना होने से ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं शोरकोट से आबिद हुसैन। शोरकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन में समाई किस्त की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहर में सेंटर ज़्यादा न होने से ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सेंटर पर आई हुई ख़वातीन का कहना है कि हम इतनी ज़्यादा गर्मी में रोज़ाना आती हैं और ख़ाली हाथ घरों को लौट कर जाना पड़ता है। सेंटर की तादाद बहुत कम है जिस वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा होने से सेंटर पर बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है। ख़वातीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि शोरकोट में सेंटर की तादाद बढ़ाई जाए ताकि हम परेशानी से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, शोरकोट। कंदकोट थाना ई सेक्शन की हुदूद हैबत रोड के मकाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार नौजवान आशिक सुमरो मौके पर जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। जाँ बहक नौजवान की लाश सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दी गई जबकि जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए सक्कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तियाँ फतह नहर में 50 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। 70 एकड़ के करीब गंदम की तैयार फसल पानी की जद में आकर तबाह हो गई। महकमा नहार के अमले के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि महकमा नहार के अमले ने मिली भगत करते हुए बाअसर अफराद को पाइप के जरिए पानी चोरी करवाया जिसकी वजह से शिकाफ पड़ गया और हमारी गंदम की तैयार फसल 70 एकड़ तबाह हो गई। महकमा नहार के अमले को मुतादिद बार इत्तला देने के बावजूद भी अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। किसानों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम तर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कंदकोट सिंधु दरिया पर 6 मुतनाज़ा केनाल बनाने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहर की सियासी, समाजी और
قوم پرست تنظیموں نے انڈس ہائی وے بلاک کر دی ہے۔ کند کوٹ دھرنے کے بعد انڈس ہائی وے پر سندھ بلوچستان پنجاب جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی ہے اور اس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مسافر شدید گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت یہ منصوبہ فوری بند کرے۔ اس منصوبے سے سندھ کی آباد زمینیں بنجر بن جائیں گی۔